اور اس کے بعد خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے حساب سے بہت ساری تفصیلات جو ہیں ان پہ غور کیا گیا. اور اس سے پہلے کہ میں اعلان کروں کہ ہم نے تعلیمی اداروں کے بارے میں کیا فیصلے کیے ہیں، میں سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیلتھ پہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہیلتھ کے معاملات کے بارے میں ایک بریفنگ جو ہے وہ آپ کو دیں. السلام علیکم شفقت صاحب. جیسے آپ نے فرمایا جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ جو ہمارے کیسز ہیں کووڈ کے اور جو ہماری پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ پچھلے ہفتے 10 دن سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کچھ کمیونیکیشن اور گفتگو اس سلسلے میں ہم نے کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شرح بڑھتی ہے تو پھر ہمارے جو میڈیکل ادارے ہیں، ہمارے ہسپتال ہیں، ان کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس چیز کو وقت سے اور بر وقت آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور نتیجتاً جو ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بھی ہمیں زیادہ مریض دکھنے کو آ رہے ہیں بنسبت جو صورتحال تھی آج سے تقریباً مہینہ پہلے. فروری میں یہ تمام نمبرز و شرح تھوڑی بہتر کنٹرول میں تھی. تو اسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے کچھ ڈیسیجنز کیے ہیں. میں کچھ جلدی سے جو عمومی قسم کے فیصلے ہیں ان کا ذکر آپ کو کر دیتا ہوں، پھر شفقت صاحب کی طرف ریفر کریں گے تاکہ ذرا تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ جو گزارشات ہماری ہیں وہ بتا دی جائیں. ہم لگاتار یہ جو ماسک کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے اس کے اوپر جو سٹریس ہے وہ دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. اچھا، اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر، شہروں میں، ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں. اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن پہ، جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں، یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا. جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور. ظاہر ہے اسینشیل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں. اسینشیل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس طرح کی چیزیں. امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں، جو انڈور ویڈنگز ہیں، یعنی جو ہالز کے اندر ہیں، اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ وڈرا ہو جائیں گی، یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی. لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے. اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا. اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی. اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ.
इन तमाम चीज़ों का रिव्यू जो है, इस पे जो नजर सानी है वो इंशाल्लाह 12 अप्रैल 2021 को किया जाएगा, उस वक्त के इरादो शुमार को मद्देनजर रखें। और इसके अलावा जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं कि ये बेसलाइन डिसीजंस हैं, ये मिनिमम है। इसके अलावा अगर कोई फेडरेटिंग यूनिट अपने किसी डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बे, जगह में कोई और इजाफी चीज़ करना चाहे, वहाँ के इरादो शुमार को नज़र में रखते हुए, तो जाहिर है उनको ये हक हासिल है। एक और बड़ी ब्रीफ सी अनाउंसमेंट, इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं। आज की तारीख से हमारी जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो शुरू हो चुकी है, और सबसे पहले जो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वहाँ से ही शुरू की जा रही है। उसका तरीक़ाकार हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर जिक्र कर दूँ कि अपने सेल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से अपना जो नेशनल ID कार्ड है, CNIC है, वो डैशेस वगैरह डाले बगैर सीधा नंबर डाल के 1166 के ऊपर SMS करें तो आपको जवाब आएगा, और आपको सेंटर और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये एक बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है, तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फ़ोन कीजिए, या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है, उसको दोबारा भी आपको बता देंगे, उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये बस वादे कर दूं कि इस सेंटर को चूज़ करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में, तादाद में वैक्सीन मौजूद हो, ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो मैंने तो यही चीज़ें बतानी थी। शफकत साहब ओवर टू यू। जी शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, जो आपने सारा हेल्थ की और हेल्थ रिलेटेड मेजर्स का ऐलान किया। हमने तालीम के तनाज़ुर में भी देखा कि बीमारी का फैलाव कैसा है और क्या फ़ैसले करने हैं, क्योंकि ये जहन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बड़ा डायरेक्ट जो है वो असर पड़ता है बीमारी पर, इसलिए इसको हमेशा तालीम की नज़र से भी बीमारी के फैलाव को देखा जाता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लिया गया। जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक हैं, और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो 50% बच्चे हैं वो रोज़ आया करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कि दूर दूर बैठने के साथ, मास्क के साथ, जो सारी SOPs पहले बनाई गई थी उसके मुताबिक सिंध में, बलूचिस्तान में जो है अमल दरामद होता रहेगा। बाकी सूबे जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मसाइल नज़र आए हैं, और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो सूरत हाल पंजाब में और एक दो जगह पे KP और आज़ाद कश्मीर में नज़र आई है, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं वो ये हैं कि बाकी सारे सूबे में तो 50% के हिसाब से बच्चे स्कूल आते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन इन शहरों में जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ वहाँ सोमवार से, यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी, और वो 28 मार्च तक रहेंगी। यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में जिनका मैं ऐलान, सारे तालीमी इदारे जो है सोमवार से बंद हो जाएंगे, और वो बाहर की छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। और ये शहर जो पंजाब में है उनका मैं जिक्र करूं कि फैसलाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। एक दफ़ा मैं फिर ऐलान करता हूँ कि जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूँ, इन शहरों में सोमवार, मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे, और वो है फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी।
उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा कि इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से सोमवार से बंद हो जाएंगे बाहर की छुट्टियों के लिए, और वो 28 मार्च तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा जहां हमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा नज़र आया है। वहाँ पर भी जो तालीमी इदारे सारे हैं वो मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है वहाँ पे आगे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़े बारीक बीनी से जायज़ा लेती रहेंगी, और जहाँ जहाँ महसूस किया कि हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं वो वहाँ पे स्कूल भी बंद कर सकते हैं, किसी शहर को भी बंद कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रिव्यू जो है वो रहेगा। इसी तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है इसमें भी हम अगले 2 हफ्ते के लिए मंडे से लेके जब स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे तो हम इसका हालात का बार बार जायज़ा लेते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जिन स्कूलों में सेंड अप्स यानी कि इम्तिहानात हो रहे हैं जिनसे बच्चों ने आगे जाना है इम्तिहान देने के लिए कैम्ब्रिज के या ओ लेवल के ए लेवल के बाकी चीज़ों के लिए, तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पर पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। मैं फिर एक चीज़ का अदा करूँ कि हमने पहले मुतफ़िका फैसला किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस साल मई जून में जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तिहानात हैं वो होंगे, और इसी तरह जो बाकी इम्तिहानात हैं अगर हमारे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं तो सारे बच्चे जो हैं जो पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं उनके जो इम्तिहान दे रहे हैं वो बाकी बोर्ड्स पे भी उसका इतलाक होगा। तो ये चंद एक फैसले थे जो आज लिए गए, और मेरा ख्याल है कि स्कूल्स को इंडिविजुअली अपने तौर पे भी अपनी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जहां उनको कुछ ऐसी सूरत हाल जो गैर मामूली हो वो नज़र आए तो उसको हुकाम को उसकी इतला देनी चाहिए। तो अब इसको मैं समराइज़ करता हूँ कि तकरीबन 7 शहर हैं पंजाब के जहाँ पे 15 तारीख से सोमवार से सारे तालीमी इदारे बंद होंगे 2 हफ्ते के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में वहाँ पर भी होगा इसका इतलाक, और इस्लामाबाद पे भी इतलाक होगा, और मुजफ्फराबाद का फैसला भी हुकूमत वहाँ पे कर लेगी। तो ये है जो आज के फैसले हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जो सारे सूबों ने और सारे अदारों ने मिल के लिए, और इंशाल्लाह हम आपको अगर कोई अपडेट होगी तो अगले हफ्ते वो अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ ऐड तो नहीं करना आपने? नहीं जी, बस ये थी आपने बता दिया तमाम बातें। बस मैं फिर दोहरा दूँ कि ये जो इंडोर वेडिंग्स और इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज और श्राइन्स का 15 तारीख से इनको पहले एक खोलने की इंडिकेशन दी गई थी वो विड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों में जो आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर के इंतज़ामात हैं जैसे वो एग्रीड थे, जैसे वो अलाउड थे, वो अभी फ़िलहाल उसी तरह से चलेंगे, और इसका रिव्यू जो है वो हम 12 अप्रैल को करेंगे, ताकि हम 15 अप्रैल के बाद के जो फैसले हैं वो वाज़ेह तौर पे आपको उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बताने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो फैसले हमने किए हैं इसका इतलाक सब तालीमी इदारों पे है, यानी कि जिन शहरों में हमने 15 मुशावरत के साथ सारे सूबों की मुशावरत के साथ और हायर एजुकेशन कमीशन की मुशावरत के साथ जो हमने फैसले किए हैं इसका इतलाक स्कूलों पे भी होगा, कॉलेजेस में भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, यानी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं
उन पे इसका इतलाक होगा। ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे तालीमी इदारों पर इसका इतलाक होगा। तो ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, सब तालीमी इदारों के लिए। वो जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो मंडे से लेकर 28 मार्च तक रहेगी। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे NCOC में। इस दौरान डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वबा की शरह बढ़ रही है, शहरी घर से बाहर मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। जबकि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में 15 तारीख से 28 मार्च तक स्प्रिंग ब्रेक होगी।